اب جس کے پاس بھی ان کو دینا چاہیے نا یہ تھرڈ ایئر کا لیکچر کس کے ساتھ تھا؟ جی بیٹا السلام علیکم، کیسے ہو آپ؟ جی مریم کو آواز نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے میری آواز؟ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی اچھا بیٹا، ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ پرٹسیز ہے، ٹھیک ہے؟ پرٹسیز کو جو ہے وہ ووپنگ کاف بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ پرٹسیز کو ووپنگ کاف بھی بولتے ہیں۔ غنی اللہ جی، پرٹوسس کی ڈیفینیشن جو ہے دس از این acute bacterial infection of the respiratory tract involving trachea, bronchi and the bronchioles۔ اب پرٹوسس جو ہے اس کو کالی کھانسی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ووپنگ کاف بھی بولتے ہیں۔ اور یہ کیا بیکٹیریل انفیکشن ہے، ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن، تو یہ انوالو کر لیتا ہے برونکائی اینڈ برونکیول کو، ریسپیریٹری ٹریکٹ جو ہے انفیکشن۔ اس کی ایپیڈیمیالوجی کیا ہے؟ ڈسٹریبیوشن بائی ٹائم، پلیس اینڈ پرسن۔ ٹائم مور ان ونٹر اینڈ اسپرنگ سیزن، ونٹر اور اسپرنگ سیزن میں ہوتا ہے، اور پلیس یہ اوور کراؤڈیڈ ایریا میں، پور ہائیجینیکل کنڈیشن جاؤ، اور پور ڈائٹ۔ پرسن جو ہے یہ ایج انفینٹس اینڈ پری اسکول چلڈرن آر ایٹ گریٹر رسک۔ گریٹر رسک جو ہے پری اسکولرس بچے جو انفینٹس ہیں ان کو زیادہ تر ہوتا ہے۔ سیکس میں فیمیلز آر ایٹ مور رسک دین دی میلز۔ اور امیونٹی میں میٹرنل اینٹی باڈیز ڈو ناٹ پروٹیکٹ انفینٹس۔ اب جو ہے میٹرنل اینٹی باڈیز جو ہے ڈو ناٹ پروٹیکٹ دی انفینٹس کو پروٹیکٹ نہیں کرتی امیونٹی وائز۔ تھینک یو مریم مختار، گڈ آفٹرنون۔ تو اس میں جو ہے ڈیٹرمیننٹس اس کا پرائمری ڈیٹرمیننٹس کہہ لیں، فرسٹ ڈیٹرمیننٹس اس کا جو ہے بیکٹیریا ہے، بورڈیٹیلا پرٹسیز، ٹھیک ہے؟ اور بورڈیٹیلا پرٹسیز جو ہے وہ اس کی پک آپ کو دکھائی ہے، روڈ لائک جو ہے بیکٹیریا۔ اس میں سیکنڈری ڈیٹرمیننٹس جو ہے وہ اوور کراؤڈیڈ پیپل اینڈ پور ہائیجین اینڈ پور نیوٹریشن۔ جی فریکوینسی اس کی کیا ہوگی؟ فریکوینسی میں آپ دیکھو ایک سلائیڈ بیٹا جو میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں، جتنی بھی میں ڈیزیزز آپ کو پڑھاتی جا رہی ہوں اس کو کتنا ایک آرگنائزڈ طریقے سے میں نے کیا ہوا، اس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ فلفل ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور جہاں جہاں کوئی پکس بنتی ہے میں نے پکس اٹھا کے اس سے ریلیونٹ لگائی ہوئی ہیں۔ آپ لوگوں نے جو اسائنمنٹ بنا کے دیے میں نے کہا بھی تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ بک کو فالو کریں۔ صرف 2 یا 3 اسٹوڈنٹس نے بک کو فالو کیا ہوا ہے، اور 2 اور 3 اسٹوڈنٹس نے جو سٹارٹ کی 2-3 سلائیڈز ہیں، 3 یا 4، اس کو بک سے ٹائپ کر کے اس کے بعد جو ہے ایز اٹ از جو ہے نیٹ سے اٹھا کے مجھے چکر دینے کی کوشش کی ہے۔ اور آپ لوگوں نے مجھے چکر دینے کی کیا کوشش کی ہے؟ 15 ڈیز کے بعد تو ویسے ہی کالج کھل رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے ہی میں جو ہے لوں گی پریزنٹیشن، اور پھر میں بتاؤں گی کہ یہ کس طرح سے آپ لوگوں نے ایز اٹ از سلائیڈز اٹھا کے رکھی ہوئی۔
जिनमें कोई मटेरियल इस काबिल है ही नहीं कि जिसको बंदा कोई प्रेजेंट कर सके, समझ सके और समझा सके। कुछ ऐसे स्टूडेंट है, उन्होंने इस तरह से एज इट इज जो है मेरे पे एहसान किया हुआ है। तो इसकी पनिश मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, आपको कल या परसों तक पता चल जाएगा। जिन्होंने मुझे स्लाइड्स भेजी है वो लेक्चर खुद प्रेजेंट करेंगी। मेरे इसी लेक्चर के टाइमिंग में मेरी प्रिंसिपल से बात हो चुकी है, आप लोग खुद अपने अपने लेक्चर प्रेजेंट करोगे अकॉर्डिंग टू करिकुलम, अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स। तो फिर मैं देखूंगी, मैं बुक खोल के आगे बैठूंगी और आप सुनूंगी कि आप लोग क्या बोलते हो। ठीक हो गया? और फिर आपको पता चलेगा कि टीचर को चक्कर किस तरीके से देते हैं। आप फिर मेरे तरह इस तरीके से पढ़ा के देखना सीक्वेंस वाइज के उसमें ईच एंड एवरीथिंग फुलफिल हो रही है। आप लोगों को मेरी बेटा बात तो बुरी लगती होगी, लेकिन आप लोगों को जब भी कभी असाइनमेंट दी जाती है तो आप इस तरह से करते हो बिहेव टीचर के साथ। तो मैं ये आज ही आपके GRCR को बता देना चाहूंगी, मैं फोन करके उनको बता दूंगी कि आप लोगों को जो आपके रिलेटेड टॉपिक है वो ही साइन करें और नेक्स्ट वीक से आप लोगों ने प्रेजेंटेशन करनी। ये जो मेरी स्लाइड आपको नजर आ रही है, इसके साथ जहाँ पे आपकी अटेंडेंस आ रही है, आपके नेम्स टाइप किए हुए, इसके एंड पे हैंड रेस किया हुआ है, जहाँ पे स्पीक का जो है, इसको अगर मैं ओके करूंगी ना, देखो मैंने ओके कर दिया, तो 1 पर्सन जो है एट ए टाइम आप बोल सकते हो और उसको आप अपना लेक्चर प्रेजेंट कर सकते हो और बाकी सारे लोग उसको सुन सकते हैं। ठीक है? तो इसी तरह से मैंने इसको जो है ऑन कर देना स्पीकर को, और हैंड फ्री मैंने भी लगाई होनी, आप लोग भी हैंड फ्री लगा लेना। जिसका लेक्चर होगा वो प्रेजेंट कर ले और वो फिक्र करे जिसका अब लेक्चर जो है अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स आने वाला है। तो ये चीज आज ही मैं आपकी GR और CR दोनों को असाइन करने वाली है कि आप लोगों को जो आपके टॉपिक है और जिसका फर्स्ट बनता है ना, मेरे 4 टॉपिक हो गए, 5 ज्यादा से ज्यादा मैंने एक देना, जो यूनिट नंबर 1 हमारा चल रहा उसका सेशन 1 है। सेशन 1 में 5 टॉपिक थे, जिनमें से मैं आज तीसरा पढ़ा रही हूँ। ठीक है? यूनिट 1 वाले जो है वो फिक्र ना करें, यूनिट 1 के सेशन 2 से जो है वो मंडे से लेक्चर जो है आप लोगों ने प्रेजेंट करना, इट्स ओके। और जिसका सेशन 1 और यूनिट 1 बनता है तो वो अपनी फिक्र करे। जी मेरी आवाज आ रही है आपको बच्चों? यार ये बड़ी बुरी बात है, बार बार लाइट आती जाती है। फ्रीक्वेंसी अगर मेरी आवाज आ रही है? आर यू लिसन मी स्टूडेंट्स? जी, it occurs virtually in all countries of the world, or since beginning of this century there has been marked drop in death from the pertussis। अब उन्होंने कहा कि ये जो है all countries worldwide has since beginning of this century there has been marked drop। अब ये जो है इन डेथ जो है pertussis से होती है वर्ल्ड वाइड, ये बताया गया। In many parts of the world, pertussis is still a clinically serious illness with high mortality and complication rates। अब इसमें उन्होंने कहा कि pertussis जो है in many parts of the world, are you listening me students? In many parts of the world, pertussis is still clinically serious illness। तो वर्ल्ड पे जो pertussis है वो अभी भी जो है क्लिनिकली सीरियस इलनेस है विद हाई मोर्टेलिटी एंड कॉम्प्लिकेशन रेट्स। इसमें हाई मोर्टेलिटी और कॉम्प्लिकेशंस आती हैं ग्लोबली। अकॉर्डिंग टू WHO 2.96। थैंक यू सो मच कायनात, क्योंकि यहाँ लाइट ऑफ हुई है मुझे लगा था कि नेट ऑफ हो गया है। अकॉर्डिंग टू WHO 296 lakh people died of pertussis during the year of 2000। तो WHO के मुताबिक 2.96 लाख पीपल जो है वो 2000 में डाइड हो गए थे ड्यू टू pertussis। इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है
इन्फेक्टिव मटेरियल। इन्फेक्टिव मटेरियल मीन कि जो इन्फेक्शन हुआ उसकी सिक्रीशन कहाँ से, चाहे वो नेजोफेरेंजियल सिक्रीशन है या फिर ब्रोंकियल सिक्रीशन है। Objects freshly contaminated by such discharges। अब ये जो इन्फेक्टेड मटेरियल सिक्रीशंस हैं जो जिसकी वजह से अब सिक्रीशंस नोज से, माउथ से, आई से जो भी होंगी उनके साथ जो है वो इन्फेक्टिव पर्सन हो जाता है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को फ्रेशली जो है कंटेमिनेटेड डिस्चार्ज लगाया तो वो कहीं यूज हो गई या टच हो गई तो ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा। और पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी जो है वो फ्रॉम 7 days आफ्टर एक्सपोजर टू about 3 weeks after the onset of proximal stage being most infectious during the catarrhal stage। अब जो उन्होंने कहा कि फ्रॉम 7 days आफ्टर एक्सपोजर, एक्सपोजर से 7 days से लेके 3 weeks तक, या फिर ऑनसेट ऑफ प्रोक्सिमल स्टेज मीन जहाँ पे साइन सिम्टम्स अपीयर हो गए, ठीक हो गया। बीइंग मोस्ट इन्फेक्शियस ड्यूरिंग द कैटरल स्टेज, ठीक, तो इस स्टेज तक ये कम्युनिकेबिलिटी मीनिंग के ऑनसेट ऑफ द डिजीज से लेके 3 weeks जो है आफ्टर दैट स्टेज से तक ठीक हो गया। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकी। डायरेक्ट में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या डायरेक्ट पर्सन एक दूसरे को टच करता है इन्फेक्टेड पर्सन, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है या डायरेक्ट उसकी सिक्रीशन है वो लग जाती है। मीन्स के सिक्रीशन मीन्स के ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही हो, समझ लें उसको। तो या फिर हाथों पे लगी सिक्रीशन जो है वो उसका हाथ दूसरे को लग गया। इनडायरेक्ट में जो है इनडायरेक्टली बाय कॉन्टैक्ट विद जो है आर्टिकल्स फ्रेशली सॉलिड विद डिस्चार्जेस द पेशेंट। अब पेशेंट से डिस्चार्ज जो भी आर्टिकल्स यूज हुई हैं उनके थ्रू से इनडायरेक्ट हो गया। अब इन कम्युनिकेशन जो है इंक्यूबेशन पीरियड इसका 7 से 14 days तक है। अब इंक्यूबेशन पीरियड जो है आपके सबके याद रखने हैं कि कितना 7 से 14 days तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। अगर क्लिनिकल फीचर्स इसके देखें तो क्लिनिकली ये जो है सिम्टम्स 6 to 8 weeks with 3 stages of equal duration। तो इसमें 3 stages आती है, 6 to 8 weeks इसको लग जाती है। सबसे पहले जो है कैटरल स्टेज वो ये 1 to 2 weeks तक होती है। इसमें क्या होता है, कॉमन कोल्ड, कफ एंड फीवर जो है वो साइन सिम्टम में फील होते हैं, एंड कंजक्टिवल इन्फेक्शन और कंजक्टिवाइटिस कह लें हो जाता है। लैक्रिमेशन और लैक्रिमल ग्लैंड्स ऑफ द आईज जो है उनसे सिक्रीशंस निकलना शुरू हो जाती है, ठीक हो गया। अब प्रोक्सिमल स्टेज ये जो कैटरल स्टेज स्टार्ट जो है 1 to 2 weeks, और दूसरी प्रोक्सिमल स्टेज जो है वो 4 to 6 weeks जिसमें साइन सिम्टम बिल्कुल अपीयर्स हो चुके होते हैं। यहाँ पे जब स्टेज 1 मैंने बताया ना, इसमें कॉमन कोल्ड का फीवर या कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो उसमें अभी श्योर नहीं होता कि पर्टसिस है, लेकिन प्रोक्सिमल स्टेज जो है इसमें श्योर हो चुका होता है कि डायग्नोज हो चुका होता है। इसमें चोकिंग कफ के साथ होती है और एक्सपायरेशन, जब एक्सपायरेशन होता है तो उसके साथ चोकिंग हो रही होती है, जो इसकी टिपिकल जो है इसका साइन एंड सिम्टम कह लो। फेशियल रेडनेस स्टार्ट हो जाती है जब इतनी चोकिंग कफ के साथ होती है, तो फेशियल रेडनेस हो जाती है। मेरी स्लाइड में आपको जो चाइल्ड है वो दिखाया गया कि उसमें फेशियल रेडनेस उसकी कैसे हुई हुई है पर्टसिस के साथ और चोकिंग हो रही उसको। बल्जिंग आई हो जाता है और प्रोट्रूडिंग जो है टंग जो है वो कफ कर करके जो है प्रोट्रूड उस पर टॉर्न पड़ जाता है। इंस्पायरेशन वूपिंग, इंस्पायरेटरी वूप, और इंस्पायरेटरी वूप बहुत ज्यादा जो है वो कफ जो है वू वू की जो है आवाजें आती है, और टेनेशियस म्यूकस में बबल, और म्यूकस जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है उसकी आवाजें आती हैं, ठीक है, गले से, और मसल्स जो है कॉन्टैक्ट हो जाते हैं।
और जो है बबल की आवाजें आती हैं गले में से, और वॉमिटिंग फ्रीक्वेंटली फॉलो द कन्वल्शन स्टेज में चला जाता है, और वॉमिटिंग फ्रीक्वेंटली हो जाती है ड्यू टू टेनेशियस म्यूकस और बबल्स की वजह से। अब कन्वल्सेंट स्टेज जो है वूपिंग एंड वॉमिटिंग डायमेंशंस, ये कन्वल्सेंट स्टेज जो है रिकवरी के बाद की स्टेज है, जो मैंने आपको स्लाइड 6 वीक्स के बाद की स्टेज, ठीक है, 4 to 6 वीक्स के बाद जब रिकवरी की तरफ जा रहा होता है, तो ये रिकवरी की फेजेस समझ लें कि ये वूपिंग एंड वॉमिटिंग डायमेंशंस, इसमें वूपिंग एंड वॉमिटिंग जो है वो रेड्यूसिस की तरफ जा रही होती, काफ बिकम लेस सीवियर, और काफ जो है वो कम हो जाती है। और ये पर्टसिस के ही साइन सिम्टम्स और उसका साइकिल बताया हुआ है आप लोगों को। इसकी पैथोफिजियोलॉजी की स्लाइड थी, और वो पैथोलॉजी में पर्टसिस प्रोड्यूसिस अ लोकल इन्फेक्शन, इसमें जो है लोकल इन्फेक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है। लोकल मीन एक ऑर्गन का, ऑर्गन कौन से, जो है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दी ऑर्गेनिज्म इज नॉट इन्वेसिव, इसमें ऑर्गेनिज्म इन्वेसिव नहीं होते। इट इज multiplies on the surface epithelium of the respiratory tract that cause inflammation, necrosis of the mucosa। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो उसकी जो है एक जो है टिपिकल ऑर्गन्स है, जिसमें जो है ऑर्गेनिज्म जिन्होंने अटैच किया, और ये सरफेस एपिथेलियम ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है इन्फेक्शन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसकी काज में इन्फ्लामेशन होगा, जब इन्फ्लामेशन होगा तो नेक्रोसिस ऑफ द म्यूकोजा, और म्यूकोजा की नेक्रोसिस होगी। इट लीड टू सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्वेजन, और इसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्वेजन, क्योंकि ड्यू टू इन्फ्लामेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ द म्यूकोजा जो है वो इन्वेजन, बैक्टीरियल इन्वेजन हो जाएगी, और इसलिए इसको सेकेंडरी इन्वेजन ऑफ द बैक्टीरियल सेकेंडरी इन्वेजन कहा जाता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन में ब्रोंकाइटिस होगी, और ब्रोंकोनिमोनिया होगा, bronchitis and bronchopneumonia and bronchiectasis। ये जो है जैसे ब्रोंकियोनिमोनिया हुआ, पहले तो इन्फेक्शन होगा ना, ब्रोंकाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, जब इसको मैनेज नहीं किया जाएगा तो ब्रोंकियोनिमोनिया हो जाएगा। ब्रोंकियोनिमोनिया मीन्स सक्शन और पास और फ्लूइड इन दी लंग्स और जो है ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंकियोएक्टेसिस जो है जब उसको भी मैनेज नहीं किया जाएगा तो फिर इनलार्जमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ द एयरवे ऑफ द लंग्स का जो एयरवे मीन ब्रोंक्यूल्स जो है वो इनलार्ज हो जाएंगे ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू पस और ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, ऑफ द पस और जो है फ्लूइड कह लें, सक्रीशंस कह लें, फ्लूइड कह लें, ठीक है। अब जब एक चीज को मैनेज नहीं किया जाता तो दूसरी को मैनेज नहीं किया जाता तो तीसरी। इसी तरह से ओटाइटिस मीडिया जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर हो सकता है। और सब कंजक्टिवाइटल हेमरेज, कंजक्टिवाइटिस तो मैंने बताया था ना, जब कंजक्टिवाइटिस को जो है मैनेज नहीं किया जाएगा तो सब कंजक्टिवाइटल हेमरेज हो जाएगा। इसके बाद एपिस्टेक्सिस हो सकता है। एपिस्टेक्सिस जो है वो ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज कॉल्ड एपिस्टेक्सिस। अब हीमोस्टेसिस, हीमोप्टिसिस मीन स्पूटम, ब्लड इन द स्पूटम, और कन्वर्जन और कोमा, कन्वर्जन स्टेज हो सकती है एंड पेशेंट गो इनटू कोमा। इसकी डायग्नोज कैसे करनी है? डायग्नोज में मोस्टली डायग्नोस्ड क्लिनिकली, यूजुअली मिस्ड ड्यूरिंग द प्रोड्रोमल फेज। इसमें जो है डायग्नोज जो है मोस्टली पर्टसिस की वो क्लिनिकली ही की जाती है। क्लिनिकली साइन सिम्टम्स देख के उसके अकॉर्डिंगली जो है डायग्नोज कर दिया जाता है कि इसको पर्टसिस है। और प्रोड्रोमल फेज में उन्होंने कहा कि मिस्ड हो जाता है, क्योंकि प्रोड्रोमल फेज जो है ये साइन सिम्टम से पहली जो जिसमें जो है आप कह दें कि
इलनेस फील होती है पेशेंट को इंटरनली, बट साइन सिम्टम अपीयर नहीं होते। जब तक कंप्लीट साइन सिम्टम अपीयर नहीं होते तो क्लिनिकली उसको डायग्नोज नहीं किया जाता। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रोडोमा डोमल फेस जो है, इसमें प्रोडोमल फेस या प्रीमोडियल फेस इसको बोल सकते हैं, इसमें जो है हम डायग्नोज नहीं कर सकते क्योंकि साइन सिम्टम जो है वो क्लियरली नहीं हम ऑब्जर्व कर सकते। ड्यूरिंग प्रोक्सिमल स्टेज फॉलोइंग फीचर्स हेल्प इन डायग्नोसिस। अब प्रोक्सिमल स्टेज मैंने बताया था आप लोगों के कि जिसमें साइन सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं और सिकनेस की तरफ चला जाता है पेशेंट, तो इसमें डायग्नोस करना इजी हो जाता है क्योंकि साइन सिम्टम वेरी क्लियरली जो है वो नजर आते हैं। और जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल वूप एंड कफ, इसमें टिपिकल वूप जब पेशेंट कफ करता है तो एक टिपिकली जो है वॉइस प्रोड्यूस होती है, उस वॉइस को वूप कहते हैं। वूप की आवाज उस कफ में आती है, जिससे जो एक टिपिकली एक जो है साइंस या एक ऑब्जर्वेशन कह लें डायग्नोज करने की वूपिंग कफ को। ऑब्जर्वेशन ऑफ द इन्फेंट ड्यूरिंग द एपिसोड। अब इस तरह के एपिसोड में इन्फेंट को ऑब्जर्व करना होता है कि जो टिपिकली साइन सिम्टम है वो के वो विजिबल हो रहे कि नहीं। फिर इसमें हिस्ट्री ऑफ द कॉन्टैक्ट विद अ नॉन केस, इसमें हिस्ट्री जो है वो नॉन केस की हिस्ट्री जिसको हम जानते हैं तो उसको इसकी कंप्लीट हिस्ट्री जिसकी पता है या हम कंप्लीट हिस्ट्री जो है हम ले सकते हैं। ये नहीं कि हमने एक दफा पेशेंट को देख लिया और उसको डायग्नोज कर दिया, तो हम उस पेशेंट के साथ टच रहेंगे और उसकी कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट केस डायग्नोज करने तक। ठीक हो गया। ब्लड पिक्चर में जो है ल्यूकोसाइट्स जो है 30,000 to 40,000 जो है मिलीमीटर क्यूब के हिसाब से होंगे। एब्सोल्यूट जो उसकी पिक्चर हमें नजर आनी चाहिए वो 80%, जो आपको एक बता दिया कि 30,000 से 40,000 होंगे तो इसका 80% होना जरूरी होता है जब हम उसको जो है टेस्ट उसका करवाते हैं ल्यूकोसाइट्स का। एक्सरे चेस्ट में अगर देखें तो पी हीलर जो है इन्फिल्ट्रेशन इन माइल्ड केसेस जो है उसमें प्री हीलर जो है इन्फिल्ट्रेशन पॉकेट्स बनी होती हैं लंग्स के अंदर, और एट्यूलेक्टेसिस और जो है मीडिया स्टर्नल जो है मीडिया स्टाइनल जो है एम्फाइजीमा स्फीयर केसेस। अगर स्फीयर केसेस हो जाए तो ये मिड स्टर्नल साइड पे एम्फाइजीमा हार्ट साइड पे जो है ये इसकी जो ब्लड वेसल्स है वहां पे एक जो है दरमियान में मिड स्टर्नल पे। अब एक्सरे इमेज में हार्ट साइड पे भी एक पॉकेट नजर आएगी इन्फिल्ट्रेशन की, और ये पिक्चर जो एक्सरे की इमेज होगी उसमें भी एक पॉकेट नुमा जिसमें जो है इन्फिल्ट्रेशन होगी वो विजिबल होगा जब हम एक्सरे करवाते हैं। जब हम एक्सरे करवाते हैं तो उसमें सिर्फ चेस्ट नहीं देखी जाती, हार्ट भी देखा जाता है। तो जहाँ पे हार्ट साइड पे एक पॉकेट नजर आएगी मिड स्टर्नम पे, तो उसमें आपको चेस्ट साइड पे लंग्स में भी इन्फिल्ट्रेशन जो है वो विजिबल होगी। हाँ जी, गुड साइमा शाकिल, जो मैं आपको बताना चाह रही थी ठीक हो गया, आप लोगों को क्लियर हो गया। और जो है सीरोलॉजिकल टेस्ट में जो है मेजिंग सीरम आईजीएम और आईजीए एंटीबॉडीज जो है वो हम करवाएंगे ब्रॉडिटेला जो है बॉडिटेला पर्टोसिस के अगेंस्ट। और इसमें नेजोफिंजियल जो सबसे इजी तरीका है वो नेजोफिंजियल स्वैब फॉर कल्चर। तो ये जितने भी सिक्रीशंस हैं, जितनी भी हमारी डिजीजेस हम पढ़ रहे हैं उसमें एक तो हम क्लिनिकली ऑब्जर्व करते हैं, दूसरा जो इजी तरीन तरीका कार है वो कल्चर जो है वहाँ नेजियोफ्रिंजल स्वैब जहाँ सिक्रीशंस आपको
फील हो रही है, वहां से आप लेके सिक्रीशन तो स्वेबिंग करके कल्चर करवा लें, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, तो उसमें आपको क्लियरली जो है बैक्टीरिया या वायरस जो भी है वो नजर आ जाएगा, और साथ में उसकी एंटीबायोटिक जो देनी है उसके साथ ही वो भी आपको जो है उस सेंसिटिविटी रिपोर्ट में मिल जाएगी। इसकी ट्रीटमेंट में जो है ड्यूरिंग एक्यूट फेज, एक्यूट फेज जो है इसमें एरिथ्रोमाइसिन 30 to 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे जो है देना, डिवाइडेड डोजेस फॉर 2 वीक्स। अब 3 डिवाइडेड डोजेस में देना कि अगर 30 to 50 मिलीग्राम देना, 30 to 50 जो है अकॉर्डिंग टू साइंस एंड सिम्टम्स, अगर बहुत सीवियर है तो 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे, और अगर माइल्ड है तो 30 मिलीग्राम पर केजी पर डे जो है वो जो है रिकमेंड करना, और उसकी 3 डिवाइडेड डोजेस मॉर्निंग इवनिंग एंड नाइट, ठीक है, TDS जिसको बोलते हैं, फॉर 2 वीक्स is the drug of choice. Possible alternative are ampicillin and Septron और tetracycline, और इसके अल्टरनेटिव अगर कोई मेडिसिन देनी है तो उसकी चॉइस जो है एम्पिसिलिन, सेप्ट्रॉन और टेट्रासाइक्लिन होती है। नेक्स्ट जो है एनिट्यूसिव्स जो है, इसको एनिट्यूसिव मीन जो कफ सप्रेसेंट, जो कफ को सप्रेस करेंगी, वो कौन सी, कफ को जैसे आप नॉर्मली देखें कि अगर कफ या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, हमें वूपिंग कफ नहीं होती, सोर थ्रोट होता है, तो उसमें जब हम जाते हैं तो एंटीहिस्टामिन देते हैं। एंटीहिस्टामिन क्या है, सेडेटिव ड्रग्स, उसमें सेडेटिव होते हैं जिसमें मसल्स रिलैक्सेशन और पेशेंट रिलैक्स हो जाता है। अदरवाइज जब लेटते हैं सोते वक्त बहुत ज्यादा इतनी वूप इतनी कफ होती है, नॉर्मली काफी इतनी ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए इस पे एंटीहिस्टामिन और सेडेटिव देना जरूरी होता है। स्टीम इनहेलेशन, किसी किस्म की भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसमें स्टीम इनहेलेशन देना बहुत जरूरी होता है, जिसमें 90% जो है फर्क पड़ता है, क्योंकि इससे ब्रोंकोडाइलेटर्स है स्टीम इनहेलेशन, इससे जो है एयरवे क्लियरेंस हो जाती है और सिक्रीशन जो है वो थिन होके बाहर निकल आती है। अवॉइडेंस ऑफ कफ प्रोवोकिंग फैक्टर लाइक डस्ट, स्मोक और एक्साइटमेंट एंड सडन जो है चांसेस इन टेम्परेचर, ये सारी चीजें जो है कफ से रिलेटेड, इनसे अवॉइड करना होगा। आफ्टर एक्यूट फेज, अब एक्यूट ड्यूरिंग एक्यूट फेज मेडिकेशन थी, और आफ्टर एक्यूट फेज जो मेडिकेशन है इसमें प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकोनिमोनिया बाय एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक। अगर साथ में ब्रोंकोनिमोनिया हो गया है तो उसमें ब्रोंकोनिमोनिया के लिए जो है वो एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक लाजमी देना होगी साथ में, और इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन की इम्प्रूवमेंट करनी होगी, ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इफ एनी, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन जैसे ब्रोंकोनिमोनिया हुआ तो उससे रिलेटेड एंटीबायोटिक्स देनी। इसी तरह जितनी भी कॉम्प्लिकेशन, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन जो है इसके साथ रिलेट हो जाती है तो उस कॉम्प्लिकेशन की जो है उसके साथ मेडिकेशन देना होगी। प्रिवेंशन जो है इसमें वैक्सीनेट कराना पेशेंट को, दी वैक्सीनेशन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर पर्सन ओवर द एज ऑफ 2 years, तो जब तब रिकमेंड नहीं करना जब पेशेंट जो है ओवर द एज ऑफ 2 years हो जाए। और इसमें कीमो प्रोफाइलेक्सिस जो है, एरिथ्रोमाइसिन शुड बी गिवन फॉर कॉन्टैक्ट फॉर 10 days, पर्टिकुलरली दोज अंडर 2 years। ठीक हो गया। इसमें जो है प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट जो है एरिथ्रोमाइसिन देनी है, कब देनी है, गिवन फॉर दी कॉन्टैक्ट फॉर 10 days, पर्टिकुलरली दोज अंडर 2 years। ठीक हो गया। इसमें जो क्वेश्चन है वो ईपीआई शेड्यूल का क्वेश्चन है कि ईपीआई पर्टसिस के लिए ईपीआई शेड्यूल क्या होगा। पर्टसिस के लिए जो है मिक्स्ड वैक्सीन जो है डीपीटी के साथ देनी होगी।
तो डिप्टेरिया, पर्टसिस एंड टेटनस। टाइप ऑफ वैक्सीन जो है डी एंड टी आर टॉक्साइड्स, पी इज जो है किल्ड वैक्सीन होगी, एंड डोज इसकी क्या है, हाफ ml IM देनी है, और इसकी साइड क्या होगी, एंट्रोलेटरल जो है एंटीरियो कैरोलो या एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ द राइट थाई के सामने जो है वो हम इंट्रामस्कुलर डीप मस्कुलर लगाते हैं। Pertussis vaccine is not given after the age of 24 months because the neurological complications such as encephalitis, prolonged convulsion, or रेस सिंड्रोम के ब्रेन एंड लीवर डैमेज हो जाते हैं और इसमें कन्वल्जन होता है, और इन्फेंटाइल जो है स्पैज्म, इसमें जो है इन्फेंट जो है उसके मसल्स स्पैज्म हो जाते हैं और वो कांस्टेंट रहते हैं, और इस स्टेज में जो है वो इसको जो है रिकमेंड नहीं कर दी। और इसकी फर्स्ट डोज जो है डीपीटी की हमारे ईपीआई प्रोग्राम में, एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन में शामिल कर दी हुई है, जिसपे फर्स्ट डोज डीपीटी की जो है वो 6 वीक्स पे देनी, सेकेंड डोज जो है वो 10 वीक्स पे देनी, थर्ड डोज जो है 14 वीक्स, एंड बूस्टर डोज उसकी जो है 20 to 23 मंथ। जी बच्चों, मुझे अभी याद आया कि जो मैं लास्ट लेक्चर, अच्छा मुझे जो है रिकॉल हो रहा था कि कहीं मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया, तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर जो कम्युनिटी का था, इम्यूनिटी पढ़ा रही हूँ, उसमें भी ये जो है आया था, ठीक है। उसमें मैं ईपीआई प्रोग्राम जो है वो आप लोगों को इस अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली इसी वीक में पढ़ाने वाली हूँ। तो ये तो सिर्फ वूपिंग काफ का है, तो वो पूरी जो है 9 डिजीजेस के अगेंस्ट जो ईपीआई प्रोग्राम है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, जिस तरह मैंने इसको डिस्कस करते वक्त बताया कि इसमें कौन सी वैक्सीन होगी और उस वैक्सीन की डोज क्या होगी और उसकी रूट क्या होगी। तो ये सारी चीजें पूरे जो मैं आप लोगों के साथ ईपीआई प्रोग्राम जो है वो डिस्कस करूंगी, तो सारी डिजीजेस का जो है इंशाल्लाह डिस्कस करने वाली हूँ। तो आगे रेफरेंसेस आ गए हमारा जो है वो पिंक ऑफ आज का लेक्चर नंबर 3 जो है वो खत्म हो गया, और कल मैं इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ दोबारा आप लोगों के साथ होंगी। और आज जो है 47 मिनट हो गया, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं, आप लाइन पे रहिएगा, मैं अटेंडेंस शीट ले आऊं और आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं। अगर आप लोग स्किप कर गए तो आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो एब्सेंट ना लग जाए कहीं।
जमोट आ रही है वो वाला लामा इकबाल वाली कर लेंगे वो जो कहती है मुझे प्रोटोकॉल भी उसकी आपको बात हुई नहीं है, हाँ जी कर वो लेंगे वैसे उससे भी भी। हमारे ना एक है ना सर के जूनियर वकील हाँ। उसकी क्लाइंट है बस ठीक है, प्रोटोकॉल डाल लेगी, हैं? डाल लेगी खुद ही। मैं हाँ मैं वैसे आपको बता रही हूँ उसको तो पता नहीं शो करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं अच्छा। अगर तो करवा दिया तो बता दूंगी मैं आपको अगर ना कहा तो जरूरत पड़ी तो मुझे बता दूंगी, कर लूंगी मैं बात उससे। अगर देखते हैं ना कि कहाँ से हैंडल होता है तो हैंडल हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो कर लूंगी हैंडल। मेरे पास और किसी को नहीं भेजा, मेरे पास किसी को नहीं बस हमें दूसरी लड़का दिया ना वो बस ना नहीं लड़की को क्या क्या मुझे पहले बताते बस अभी ब्यूटिशियन अपना सामान नहीं अभी
मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। मुझे अटेंडेंस शीट नहीं मिल रही थी, मुझे अब मिली है अटेंडेंस शीट, तो मैं शुरू करने लगी हूँ अभी अटेंडेंस। जी बेटा ओके, अल्लाह हाफिज, अटेंडेंस हो गई है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। बेटा अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।